Your host for today extends a very warm welcome to our faculty member, guest lecturer, and my dear fellow students. We are grateful for your presence and thank you for joining us for today's session. But before getting on board with the event, I would like to inform you all that we are organizing these kinds of events under IIC, that is Institutions Innovation Council. The primary objective of IIC is to promote innovation and entrepreneurship-related activities such as hackathons, leadership talks, ideation programs, workshops, seminars on intellectual property rights, entrepreneurship initiatives, and other competitive events. These efforts aim to strengthen and enhance the innovation and entrepreneurship ecosystem within the institute. Now, it is my privilege and honor to introduce our esteemed guest lecturer for today, Dr. Anisha Tandon, who is the Innovation Ambassador of MOE and Associate Professor, Department of IT, JIMS, Basantpur. I would now like to call Simone to present the plan to her. I'm going to speak about innovation or prototype development. So basically, when we talk about the innovation first, so any idea what is an innovation? What is an innovation? To create something new, है ना, which is not available before, या अवेलेबल भी है तो उसमें कुछ ऐसा नया कुछ आप यूनिक लेकर आ रहे हो, so that is called as an innovation. So basically हम उसी से डील करेंगे. We will see about innovation or prototype validation, value proposition fit and the business fit. Whenever we think about any idea, anything, so we should focus like कि भी उसे आगे हम मार्केट में कैसे लेके जाएं. So उसके लिए business का भी हमें देखना होता है. So how it fits to our business also, that is also very important. So if we talk about innovation first, it is a process of converting your creative idea into products, services or processes that create value for the customers and the society. So it can be anything like product innovation can also be there, process हो सकता है, सर्विस इनोवेशन हो सकती है, कोई बिजनेस मॉडल आप जब क्रिएट कर रहे हो, that can also be your innovation. So innovation can be anything. So anything which is you are creating और आपके माइंड में कुछ अलग है, that is not available, या फिर आप जो प्रॉब्लम्स, करंट प्रॉब्लम्स आप देखते हो, उसके बेसिस पे आप कुछ इनोवेटिव लेकर आते हो, वो आपका इनोवेशन हो. अब जैसे जनरली जब हम हैकेथॉन्स करते हैं, तो व्हाट वी डू, वी see the problem statement first. अभी कमिंग मंथ में जैसे सितंबर में भी हैकेथॉन इज कमिंग, उसमें आप बताओगे कि क्या क्या रियल प्रॉब्लम्स लाइफ में आप देखते हो. सो रिसेंट जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको देख के आप कुछ इनोवेटिव लेकर आते हो. तो दैट इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं था. उसी से ही आपका एक स्टार्टअप भी निकल के आता. तो अभी रिसेंटली हमारे जो पिछले स्टूडेंट्स थे उसमें भी स्टार्टअप ऐसे ही आया जो रियल लाइफ फार्मिंग की प्रॉब्लम थी, उसी को लेके उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं है. उसी को ही उन्होंने देख के आगे उस पर काम किया एंड दे डेवलप देयर ओन आइडिया और उसी इनोवेटिव आइडिया को उन्होंने एज अ स्टार्टअप एस्टैब्लिश. ठीक है. सो अब जो है नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, तो जैसे अगर हम उबर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट उबर हियर, चेंज द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस मॉडल. पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो मॉडल था वो हमारा चेंज हो गया जब हमने उबर को यूज़ किया. इससे पहले हम बसेस वगैरह में जाते, ठीक है, बस या फिर हमने फिर मेट्रो ये सब में भी गए, फिर धीरे धीरे हम पर्टिकुलरली उबर में चले गए, फिर अदर भी आ गए. लेकिन जो उबर लेकर आया वो या ओला लेकर आया वो हमने उसी को यूज़ किया. तो ये भी एक आइडिया ही था ना, दैट इज आवर इनोवेटिव आइडिया. उसी तरह से पेटीएम, अब पहले क्या होता था कि कैरी द कैश,
हम हमेशा कैश कैरी करते थे, हमेशा कहीं ना कहीं कैश रखते थे, बट नाउ वी आर नॉट कैरिंग वेरी टाइम्स। हम मोबाइल से ही पेटीएम के थ्रू अपनी पेमेंट्स कर देते। तो इट इज़ ऑल्सो एन इनोवेटिव आइडिया। तो जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती है उसी को देख के जब हम अपना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, जो इनोवेशन निकालते हैं, उसी से ही हमारा प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व होता है। तो इट्स पेटीएम सिंप्लीफाइड डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। तो सारी जो भी पेमेंट्स थी डिजिटली वो हमारी पेटीएम से सॉल्व। देन उसके बाद थिंक ऑफ वन इनोवेटिव प्रॉब्लम you use daily, why and why it is successful. Anyone can think, raise your hand, please think about it if you have seen any kind of like जो आप day to day innovative process जो use कर रहे हो, आप अपने लाइफ में उसे यूज़ कर रहे हो अभी रिसेंटली कोई भी, and any innovation that you are using in day to day life. Raise your hand. कोई भी, मतलब आप कर रहे हो रेगुलर, हम छोटी छोटी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, उसमें भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उस इनोवेशन। कोई बता सकता है? यूपीआई बताया ना आपने। सो यस, यूपीआई इज ऑल्सो वन इनोवेशन जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यूपीआई को भी हमने पेटीएम का भी देखा ही था, तो यूपीआई इज ऑल्सो, इवन वी हैव द गूगल मैप्स ऑल्सो। आपने देखा था पहले हमें रास्ते नहीं पता होते थे, हम अपने आप ही देख देख के पता करके जाते थे। उसके बाद हमारे पास गूगल मैप आ गया, दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। उन्होंने देखा कि रियल लाइफ में यूजर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कि उन्हें कैसे कहाँ पे क्या जाना है, लोकेशन। गूगल मैप जो है हम हमेशा उसके बिना कहीं जाते ही नहीं, अगर हमें कहीं भी जाना है दूर, कहीं भी इधर उधर रास्ता। जनरल अगर हम कहीं जा रहे हैं जहाँ हम रोज जाते हैं वो अलग चीज़ है, अदरवाइज गूगल मैप से हमें ट्रैफिक भी चेक करना है तो वो भी हम चेक करते हैं कि कहाँ से हमारा रूट ठीक रहे। तो दैट इज ऑल्सो एन इनोवेशन जो कि रियल यूजर की प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ पे बनी है। तो इनोवेशन क्या है? रियल टाइम इनोवेशन विद ट्रैफिक अपडेट्स। वी कैन आइडेंटिफाई कि अभी रियल ट्रैफिक क्या है, रियल टाइम ट्रैफिक वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग द गूगल मैप। Then the problem solved help you to find the fastest route and avoid traffic congestion. अब मैप से हम देखते हैं कई बार ट्रैफिक आ गया, काफी ये आने वाला है, तो उसमें हमने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया एंड यूजिंग द मैप वी आर टेकिंग अनदर डायरेक्शन। That also an innovation. So it is successful because it is accurate, easy to use, free, continuously updated with the live traffic and the location data. फिर हमारा आता है व्हाट्सएप भी था, ठीक है। व्हाट्सएप ने भी हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की। इफ वी हैव द इंटरनेट कनेक्शन, कॉलिंग बहुत ईजी हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेमेंट वाली ही रखनी होती है। लोग जो हैं कईयों की इनकमिंग्स बंद होती हैं बट वो व्हाट्सएप से बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो एक ऐसा प्रोविजन हो गया आजकल जिसके थ्रू हम अपनी बात कर सकते हैं विदाउट पेइंग मनी। So, innovation, free internet based messaging and calling. हम इजीली मैसेजिंग, कॉलिंग फ्री में करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व है, एनेबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब कहीं भी कोई भी पर्सन किसी भी लोकेशन पे है तो वो बात कर सकता है इफ दे हैव स्टेबल इंटरनेट। देन वाई सक्सेसफुल, यूजर फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबल है, एनक्रिप्टेड है, सपोर्ट्स टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट शेयर। हम कोई भी डेटा इंपॉर्टेंट वॉइस नोट भेज सकते हैं, वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट, वीडियो और फोटोज, कोई भी इंपॉर्टेंट जो होती है वी कैन शेयर इजीली यूजिंग दी व्हाट्सएप। मेल को भी हम यूज़ करना कम करते हैं, हम व्हाट्सएप से बहुत सारे काम करते हैं। वी नो दैट वी आर वर्किंग विद द क्लब्स ऑल्सो, आप सबके भी क्लब्स हैं, तो कितना काम हमारा व्हाट्सएप के थ्रू होता है। कम्युनिकेशन जो है चैट्स के थ्रू ये सब है वो हम व्हाट्सएप के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट्सएप भी काफ़ी सक्सेसफुल एक आपका इनोवेशन है जिसके थ्रू द कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी बेटर होती है। तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर योर इनोवेशन। अच्छा, अब जब हम इनोवेशन से आगे जाते हैं सो वी टॉक अबाउट अ प्रोटोटाइप। एनी आइडिया अबाउट अ प्रोटोटाइप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी अभी तक आप? वही पढ़ रहे हैं ना।
तो उसमें प्रोटोटाइप के बारे में टेस्ट मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल बिफोर प्रोड्यूसिंग इट एंड मास सो इट इज जस्ट लाइक योर डमी, है ना। एक आप एक डमी प्रोजेक्ट दे देते हो यूजर को एंड यू विल सी कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है फर्स्ट। तो एक तरह से हमने काइंड ऑफ अपना एक डमी बना दिया, ठीक है। ट्रायल पे जैसे हम रख देते हैं ना किसी चीज़ को, वी विल चेक कि कोई उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। सो प्रोटोटाइप इज जस्ट लाइक डमी प्रोजेक्ट। So it is an initial version of the system used to demonstrate concept and try out design options. We have to check कि whether design is okay or not. तो user को एक GUI provide कर दिया कि भाई ये कैसा दिखता है। अब जैसे आप सपोज करो कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वो प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप उसका एक ना बेसिक लेआउट बना लेते हो। एडोब वगैरह कई सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कि आपका कैसा लेआउट रहेगा, वेबसाइट कैसी दिख रही है, कौन से लिंक्स क्या क्या वर्क परफॉर्म करेंगे, वो सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके दिख रहे हो। तो एक जस्ट आपने एक डमी बनाया ताकि आप यूजर्स का फीडबैक ले सको, ठीक है, आप देख सको कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो द प्रोटोटाइप इज जस्ट अ सैंपल और डमी ऑफ द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू डेवलप। So prototype concept में these three things are important. Customer feedback. Customer feedback क्यों चाहिए होता है? Why do we need a customer feedback? प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ताकि प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकें। We need a customer feedback. Then it is used to develop or refine prototype, जिसके थ्रू हम जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसे हम और रिफाइन कर सकें। Then testing is also required. क्योंकि we need to test जो भी यूजर ने हमें बताया उसके बेसिस पे भी we need to test it again. तो टेस्टिंग ऑफ अ प्रोटोटाइप बाय द कस्टमर इज आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि बिकॉज कि वो कितना सक्सेसफुल हो। So this is called as your prototype concept. Next, pre-production sample. Before moving with the full-scale production, preliminary version of the model is developed to test and evaluate. So we need to make a design first, functionality we need to check, feasibility we need to check. अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो वो डेवलप करने के टाइम पे आपको एक preliminary version आप बना देते हो उसका, so that you will check कि वो कैसा है। तो उसमें आप डिज़ाइन देखते हो कि वो डिज़ाइन यूज़र को कितना सही लग रहा है। You need to check the functionality कि उसकी functionality properly work कर रही है नहीं कर रही। Feasibility is also important. Do you know what is a feasibility? क्या रहती है? Financially feasible. We have to check कि कितना feasible है। बजट वगैरह जो है वो सारा इसी में ही आ जाता है। Feasibility. We need to check the profit. Yes, profitability of the system. ठीक है? Feasibility is required. Please don't talk in between. ठीक है? So feasibility is required. We need to check whether the system is profitable or not. ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते हो यू नीड टू चेक कि भाई वो कितना आपके लिए फिजिबल रहेगा, आगे आपका वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। नहीं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर स्टॉप हो जाएगा, फिर आप उस पर आगे काम नहीं कर पाओगे अगर उसका आपको कुछ रिटर्न नहीं आता। तो हमें प्रॉस और कॉन्स दोनों देखने होते। Requirement gathering and the analysis. Initial step of designing model, we need to ask about what they expect or what they want from the system. So if you are developing any kind of a system, you need to take the user's point of view because it is required, क्योंकि हमारा क्या user जो है वो चाहता है। तो हमें requirement collections करना और gather करना is very important. आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड लाइफ साइकिल देखी होगी, उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट देंगे। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होंगी तभी हम उस पर आगे काम कर पाएंगे। सो वी नीड टू गैदर द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और उसको चेक भी करना कि वो कितनी फिजिबल है। अब आपने इतना सारी रिक्वायरमेंट लिखी, आपने देखा हार्डवेयर कौन सा यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है, लेकिन आपने उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी आपको साथ में। एनालाइज का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो है वो लेना है। अब जैसे सपोज करो आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, ठीक है, ओरेकल का ही कोई ले रहे हो,
क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर। आगे जाके मार्केट में ऑरेकल जो है उसके नए वर्जन आ गए, उसमें ज़्यादा फीचर्स आ गए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको अपना प्रोजेक्ट जो है अब उसमें लेके जाना या किसी और टेक्नोलॉजी में लेके जाना। तो इन दैट केस यू शुड हैव सम बजट, क्योंकि आप उसमें अगर स्विच नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। पहले पूरा काम PHP, ASP वगैरह पे रहता है, फिर पाइथन में चले गए। तो हमारा जो स्विच है अगर हम कर रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड, तो उसकी भी चीज़ें हमें देखनी होगी। तो हमें हर तरीके से एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है। Then, quick design and build prototype. If you create any kind of if you take any requirements, you have to gather it, analyze it, and then you have to give the shape to the contents that you have suggested. So जो भी requirements थी वो collect हुई, and then now you have to give the design to those requirements. So converting the basic design of the requirement to which a quick overview can be easily described and building actual prototype from the knowledge gained while the brainstorm. अब क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स जो गैदर होती हैं उसके लिए आपकी क्वेश्चन से होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, सर्वेज होते हैं जिनके थ्रू रिक्वायरमेंट्स गैदर होती है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। दैट इज कॉल्ड एज अ डिज़ाइन। सो मोबाइल ऐप प्रोटोटाइप, create a wireframe or mock-up of a mobile application using tools Figma, Sketch, Adobe XD, ये सब आपके यूज होते हैं जिसके थ्रू आप उनको एक प्रॉपर डिजाइन दे सकते। क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब सोचते हो, आपको पता है कि ये चीज़ें आपको यूज करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप सोचोगे, अगर थोड़े दिन बाद सोचोगे ना तो आप भूल चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मिक्स मैच हो जाता है। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जो कि टीम में शेयर होता है, उसी के बेसिस पे काम स्टार्ट होता है। कोडर जो होता है वो ऐसे ही नहीं काम कर देता। कंपनीज में जब काम होता है तो पहले जब रिक्वायरमेंट गैदर होकर एनालाइज होती है तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, वो डॉक्यूमेंट कोडिंग टीम के साथ शेयर होता है और उसके बेसिस पे टीम अपना एक कोड लिखती है फॉर द प्रोजेक्ट। देन उसके बाद वो आगे टेस्टिंग वगैरह में जाता है। Then initial user evaluation and the refinement. तो बेसिकली यूजर जो है वो जो भी रिक्वायरमेंट इनिशियल स्टेज पे हमारे पास आती है उसका एक क्विक डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कम्प्लीटली वाला जो प्रोजेक्ट है वो पहले नहीं देख रहे हैं, हम पहले ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं वो यूज़र कितना उस पर सेटिस्फाइड हो। तो उसके लिए हम एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हम सोचते हैं उसका एक क्विक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। क्विक डिज़ाइन ऐसे होता है जैसे अभी अभी के दौर में भी पीछे स्टूडेंट्स जब अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो एक क्विक डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं और बताते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे कैसे जाए। ऐसी कंपनीज में भी होता है कि कोई प्रोटोटाइप जो है वो क्रिएट हो गया, ताकि एक डिज़ाइन दे दिया, क्विक डिज़ाइन बना दिया, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कितना ठीक है। तो जब हम उसे दिखाते हैं आगे तो उसकी बेसिस पे प्रोटोटाइप जब डेवलप होता है फिर हम उसकी इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। इवैल्यूएशन के बाद अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है देन रिफाइन तब तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज रिफाइनमेंट रिक्वायरमेंट भी इज ऑल्सो देयर, मीन्स वी हैव टू उसमें और रिक्वायरमेंट हमें ऐड करनी होती हैं एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट। अभी एक मॉडल होता है आइटरेटिव मॉडल, जो SDLC का मॉडल है, उसमें ये होता है कि आइटरेशंस के बेसिस पे यूज़र का के हिसाब से मॉडल बनाया जाता है। तो जब मॉडल डिज़ाइन होता है तो उसमें यूज़र ने अपना फर्स्ट आइटरेशन, सपोज करो 3 आइटरेशंस में प्रोजेक्ट बने। फर्स्ट आइटरेशन में यूज़र को दिया गया, उसने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी, फिर सेकेंड आइटरेशन में उसको ठीक करके उन्होंने दे दी, उसके बाद फाइनल कि भाई वो अपनी जो जो चीज़ें रह गई हैं वो बता दे ताकि वो थर्ड रिफाइन रिक्वायरमेंट्स में उसको दे सके।
तो इस तरह से यूज़र्स की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो गैदर होती हैं और फिर रिफाइन भी होती है और उसके बेसिस पे क्विक डिज़ाइन दोबारा से बनती है। तो ये एक इनिशियल यूज़र इवैल्यूएशन है जो हमारा परफॉर्म होता है। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की, तो ये पूरी हमारी साइकिल फॉलो होती है। Please understand this cycle because for any kind of the project if you are making, so you need to see these things. First आपने देखा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सबको पता है कि सबसे पहला काम क्या है हमारा, रिक्वायरमेंट गैदर करना, ठीक है। देन क्विक डिजाइन, अभी हमने देखा था डिजाइन क्विकली बनता है हमारा। देन उसके बाद उसके बेसिस पे प्रोटोटाइप विल बी क्रिएटेड। When the prototype will be created, it will go to the customer for evaluation. अगर रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड है तब तो वो रिफाइन होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेंस बाय द कस्टमर हो गया, एक डिज़ाइन पूरा बन जाएगा जो फाइनल डिज़ाइन होता है। यूज़र ने अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका इवैल्यूएट किया और वो ठीक निकल गया, आगे यूज़र सेटिस्फाइड है, तो फिर आगे उसका एक प्रॉपर डिज़ाइन बनेगा जिसको टेस्टिंग में लेके लाया जाएगा। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर उसकी टेस्टिंग होगी और एट द एंड उसको मेंटेन किया जाएगा। तो ये सारे SDLC के फेजेस हैं जो हमारे प्रोटोटाइप के बाद परफॉर्म होते हैं। मुझे डाउट है कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ द प्रोटोटाइप जो बाकी का प्रोजेक्ट है वो प्रोटोटाइप पे ही डेवलप होता है या फिर नहीं, देयर आर सो मेनी मॉडल्स जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं। वाटरफॉल भी होता है, स्पाइरल भी होता है, आइटरेटिव भी होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रोटोटाइप के बेसिस पे करना है। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि यूजर्स जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जाओ। तो इट डज नॉट मैटर, मतलब डिपेंड अपॉन योर वर्क या डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रोटोटाइप पे जा सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, टाइमलाइन की लिमिट नहीं है तो आप फिर दूसरे मॉडल्स को के थ्रू अपना प्रोजेक्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। So next we have defined the purpose and the goals. Like to understand the purpose of the prototype and establish specific goals that you want to achieve through the design process. So your goal should be clear. अगर कोई भी चीज़ आप करते हो तो आपका गोल जब तक नहीं है क्लियर तब तक बहुत मुश्किल होता है। और जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, तो उसके बाद जब हम एक्चुअली में उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विल कम। तो गोल जो होता है ना उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस भी आ जाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव और आपका गोल में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही देखनी होती है। Determine the intended functionality, features and the characteristics of the prototype also. You need to see कि क्या-क्या उसमें functionalities रहेंगी और features क्या-क्या दे रहे हो, क्या characteristics है उसमें, वो prototype के आपको पहले से ही देने होते हैं। फिर आप इसको जब एक proper conceptualize और sketching देते हो तो आप इसकी drawing भी बनाते कि आपका कैसा दिखेगा, ठीक है। तो brainstorm ideas and create rough sketches और drawings of your prototype। तो अलग अलग आपके जो भी उसमें डिजाइन हैं उसके बेसिस पे आप अपना एक स्केच ड्रॉ कर, ठीक है। तो क्या विजुअलाइज डिफरेंट डिजाइन पॉसिबिलिटीज एंड द फैक्टर्स आल्सो, लाइक कितना साइज है, क्या शेप रहेगी, क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, कितना यूजर इंटरेक्शन, मतलब यूजर से कितना अट्रैक्टिव रहेगा, वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती है। और इसमें इंडस्ट्री में फिग्मा, ड्रॉ, डायो, these are some softwares which are used to give the sketch. So next we have the testing and evaluation. जब टेस्टिंग होती है we need to check, हमें सिर्फ ये नहीं टेस्ट करना होता कि हमारी सारी एरर्स रिमूव हो, we need to check the performance also, कि वो कितना बेटर परफॉर्म कर, ठीक है, and the functionality also. So identify design flaws, क्योंकि डिज़ाइन जो है उसको भी देखना कि वो कितना बेटर है। आप लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज में टाइम लग रहा है आने में, तो वो परफॉर्मेंस में चला जाएगा। तो वी नीड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ, कि कितना टाइम लग रहा है हर पेज को ओपन होने में। कुछ पेज जल्दी ओपन हो रहे हैं, कुछ टाइम भी, ठीक है। सो
to focus and which area we can improve. So gather the feedback from the users, stakeholders to refine the design further. और जो आइट्रेशन का मैं आपको बता रही थी कि आइट्रेट और रिफाइन यूजर का फीडबैक आता रहता है, वी परफॉर्म द आइट्रेशन एंड अकॉर्डिंगली द रिफाइनमेंट ऑफ दोज विल आल्सो बी परफॉर्म. और जो हमारा नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन, विच इज नॉट मोस्ट, विच इज वेरी, जो आपकी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, चेंजेस मेड ड्यूरिंग द आइट्रेटिव प्रोसेस. अच्छा, क्या होता है, हम यूजर से फीडबैक ले लेते हैं, चेंजेस भी देख लेते हैं और उसका हम डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना हमारा कई बार रह भी जाता है. तो उसमें क्या होगा, जब आपका प्रोडक्ट डेवलप होगा तो क्या होगा, यूजर सेटिस्फाइड नहीं होगा एट द एंड. तो जो चेंजेस हुए, दैट चेंजेस शुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन अ डॉक्यूमेंट आल्सो. इतनी सारी जगह डॉक्यूमेंट आपका चल रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं रह जाता है, तो वो फ्लॉज रह जाता है. तो वो चीज़ पे हमें देखना. So this documentation will be useful for future reference. अच्छा, next होते हैं scaling up. We have to give the project into a particular scale. कि कितना important है, कि ये चीज़ very important, not so important. इस तरह से हम scaling भी देते हैं. ठीक है? मैं तो बस जनरल बता रही हूँ कि वैसे तो स्केलिंग अप का मतलब ये होता है कि हम वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह से 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से स्केल पे रख के रखते हैं. ठीक है, सो वंस द प्रोटोटाइप डिजाइन हैज बीन थॉरली टेस्टेड एंड रिफाइंड, इट इज बेस्ड ऑन द स्केलिंग अप प्रोडक्शन. So detailed manufacturing plans can be developed. Any necessary adjustment can be made to optimize the design for mass communication. तो ये बेसिकली एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसमें सेवरल राउंड्स होते हैं, टेस्टिंग के, रिफाइनमेंट के और आइट्रेशन के. तो जो भी वैल्यूएबल इंसाइट्स होते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन परफॉर्म होते हैं. हम उसी के बेसिस पे स्केल करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कितना सही. देन तो हमारा जो स्टेप्स थे जो हमने देखे, रिक्वायरमेंट गैदर, क्विक डिजाइन, बिल्ड अप प्रोटोटाइप, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट एंड देन द लास्ट इंजीनियर प्रोडक्ट. है ना, यही हमारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका एक प्रोटोटाइप जो है वो डेवलप होता है. तो हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे. यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व, क्योंकि हम प्रोजेक्ट ही ऐसा बना रहे हैं जिससे यूजर एक्टिवली इन्वॉल्व होगा. मेथोडोलॉजी हमारी जो है हमारा वर्किंग मॉडल में यूज होती है प्रॉपर तरीके से, सो दैट वी कैन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम. फिर एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर. क्या होता है, हाँ जी, लास्ट हमारा जो एरर्स हैं वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं, टाइमली डिटेक्ट होती रहती हैं जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती हैं. और क्विकर यूजर फीडबैक आर आल्सो अवेलेबल. साथ साथ यूजर का फीडबैक आता रहता है जिसके ठीक है. सो टू प्रोवाइड अ बेटर सॉल्यूशन. नाउ बेनिफिट्स ऑफ द प्रोटोटाइपिंग, जो यूटिलिटी हमारी रहती है और वी आर वेरी क्लोज टू द रियल यूजर्स नीड्स. तो यूजर की एक्सपेक्टेशन जो है हम उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं. दैट्स व्हाई फोकस इज ऑन द यूजर्स नीड फर्स्ट. डिजाइन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, मेंटेनेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट और एफर्ट विल आल्सो बी इंप्रूव. डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर एक्सटेंसिव कस्टमर कोलैबोरेशन. सो कॉस्ट कस्टमर मनी, जितना टाइम भी तो कंज्यूम हो रहा है और कॉस्ट भी लगती है इसकी. जितनी बार बनाओगे उतनी बार ही आपका एफर्ट और आपका मनी लगा. नीड्स कमिटेड कस्टमर आल्सो, कस्टमर कितना सही है ये भी मैटर करता है ना. हम कस्टमर तो फीडबैक तो ले रहे हैं, बट वो कस्टमर भी तो जेन्युइन होना चाहिए जो आपको एक्चुअल फीडबैक दे. वी नीड टू एनालाइज दिस थिंग आल्सो. देन डिफिकल्ट टू फिनिश इफ द कस्टमर विथड्रॉ. अब यूजर जो है उसके बेसिस पे आपने काफ़ी चीज़ें करी पर उसके बाद यूजर ने विथड्रॉ कर दिया, ये चीज़ भी आती है. तो लॉन्ग टाइम हो जाता है
करता है वो कहीं और स्विच हो जाता है, तो उसने विड्रॉ कर लिया। So prototyping tools are expensive because we have to use the tools for our prototypes and time consuming process तो होता ही है, ठीक है। So इसके examples क्या हुए? Like suppose you develop an AI attendance app. So instead of launching it immediately, show the prototype to the teacher. ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से कोई भी चीज स्टार्ट कर दें। We have to show it to the people first. तो जो उसको बेसिकली यूज करें, अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स को अगर अटेंडेंस लगाने तो उन्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो अटेंडेंस ऐप कैसी है, ठीक है। शो द प्रोटोटाइप टू द टीचर्स, वी विल टेक द feedback also, improve features based on the suggestions and then test again. ये सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी होती हैं, तभी हम ये जो प्रोटोटाइप है हमारा सक्सेसफुल रहता है। So the iterative process is prototype validation. तो इसी से हमारी एक टर्म आती है value proposition fit. इसमें we need to check what problem do you solve and who benefits, मतलब benefits किसको होंगे and what makes your solution unique. आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो ना जिसके थ्रू आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिकनेस है, तो कस्टमर की प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन है और क्या बेनिफिट है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू प्रपोजिशन। सो अ वैल्यू प्रपोजिशन एक्सप्लेन व्हाई कस्टमर शुड चूज योर प्रोडक्ट ओवर द अल्टरनेटिव्स। वी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस, तो हमारा प्रोडक्ट हमारी चीज ही क्यों वो यूज करें। अब आप अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो, उसमें आपने कोई यूनिक फीचर भी डाला, तो आपको यूजर को तो कैसे कन्वे करना है, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। तो यूजर आपके प्रोडक्ट को कैसे देखेगा और कैसे आपकी प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होगा, वो सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं। तो वो क्यों आएगा, तो वो कैसे करे, वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। तो वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? That explain how product or service solve a customer problem. And why should a customer choose your product instead of someone else? है ना, आप जैसे आप Amazon पे भी जाते हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हो अपने कोई भी इंटरेस्ट का, तो उसमें आप स्पेसिफिकली किसी में क्यों जाओ? आप तभी जाओगे ना जब आपको पता है कि ये आपके लिए सही। So strong value proposition highlights the benefit of the customer receive rather than the product feature. तो हम प्रोडक्ट के फीचर पे फोकस करने की जगह यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के फीचर्स पे फोकस करें। That is a value proposition. ठीक है, तो इसके की एलिमेंट्स हैं, जस्ट क्विक वी आर डूइंग। टारगेट कस्टमर क्या रहेंगे हमारे, हम इसमें सबसे पहली चीज देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स कौन से रहेंगे, क्या कौन से कस्टमर्स जो हैं ये चीज देखते हैं या आपके प्रोडक्ट को बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो टारगेट कस्टमर वी हैव टू सी एंड वी नीड टू चेक द कस्टमर प्रॉब्लम। अब ऐसे कस्टमर्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको देखना और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन देना, और दैट सॉल्यूशन शुड बी यूनिक आल्सो। तो यूज कस्टमर को वो कैसे बेनिफिट दे रहे, that is also very key element of a value proposition. For example, student forget the assignment deadline. तो solution क्या है? AI based reminder application. ठीक है, अब आपके पास डेडलाइंस हैं कि आपको ये असाइनमेंट इस टाइम पे करना है, ये इस टाइम पे करना है। We generally forget, कई बार ऐसे बहुत सारे कामों में या कई सारी चीज़ों में भूल जाते हैं, डेडलाइन रह जाता है। तो आप ऐसा रिमाइंडर एप्लीकेशन रख सकते हैं। आजकल कितने सारे टूल्स सब आते हैं जिसके थ्रू हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो AI based reminder application can be a solution. Never miss submission and improve academic performance also. अच्छा, अब स्विगी है, स्विगी का कैसे बताओगे? Suppose we are talking about the Swiggy application. तो स्विगी का वैल्यू प्रपोजिशन कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? उसमें क्या रखोगे? क्या प्रॉब्लम
प्रॉब्लम और कस्टमर जो है कस्टमर्स का क्या फीडबैक? Ma'am, it's basically connecting customers, drivers and restaurants in a single chain Yes. for mobile app. तो बेसिकली क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट्स हम देखते हैं, है ना, हमें मार्केट में जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट से पहले हम जाते थे, अब स्विगी आ गया, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो हमारा जो स्विगी है दैट इज कस्टमर पीपल हु वांट रेस्टोरेंट फूड डिलीवर्ड, प्रॉब्लम नो टाइम टू कुक और गो आउट, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है हमारी, है ना। सॉल्यूशन है फूड डिलीवरी फ्रॉम द नियर बाय रेस्टोरेंट्स and value proposition, fresh food from the favorite restaurant delivered quickly to your doorstep. अब सामने रेस्टोरेंट है but we are not going, है ना, हम घर पे बुला रहे हो। पता है मतलब ये तो आपका टाइम है, मतलब हमारे टाइम में ये सब नहीं होता, तो हम तो रेस्टोरेंट्स में जाते थे और वो ज़्यादा अच्छा रहता। अब क्या है कि हमारे घर पे सब कुछ आ रहा था, हम तो कहीं जाते ही नहीं, मतलब बहुत कम हो गए अपने आप, क्योंकि लाइफ भी वेरी बिजी, तो सब जो है वो इसी पे ही बिलीव करते हैं। पहले पूछने की इसलिए नियर भी है, पहले पूछने की इसलिए नियर भी है, हाँ। है ना। आप तो यूज बट आप हमारे टाइम में ये सब नहीं होता, तो हमें वो अच्छा लगता था कि हम भी जाते थे और लिंक करते थे। अब क्या है कि हम फटाफट अपने काम के चक्करों में घर पे हो जाते हैं, है ना, because we have lot of work, we don't have time to go out. उस समय टाइम होता था लोगों के पास, वर्क नहीं था। हाँ, ऐसे चलता So one last thing, तो बेसिकली क्या है कि जब हम ये सब चीजें कर लेते हैं तो बिजनेस फिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। How much suitable is for the business? If you are thinking something, if you are making something innovative, तो वो कितना business related fit रहेगा वो भी हमें देखना होगा। तो मार्केट में अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि वो बिजनेस आप ठीक से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो वो आपका जो यूनिक इनोवेशन है वो वहीं रह जाए। तो बिजनेस फिट जो है, can the innovation generate value for customers while also creating a sustainable and profitable business? Having a great product is not enough. The business must also be sustainable. हाँ? Product market. बिल्कुल। ठीक है? तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि बिजनेस जो मार्केट फिट है वो कैसे आपका इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, ऑनलाइन ट्यूटर प्लेटफॉर्म है, जैसे कस्टमर जो है वो आपके स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यू प्रपोजिशन है, अफोर्डेबल पर्सनलाइज्ड लर्निंग यू आर प्रोवाइडिंग टू योर स्टूडेंट्स। तो रेवेन्यू मंथली सब्सक्रिप्शन विल बी देयर, चैनल्स है मोबाइल ऐप के थ्रू वी कैन चेक एंड वी कैन यूज दैट ऐप, एंड फ्री रिसोर्सेज है, टीचर्स होंगे, कंटेंट होगा, सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम आगे यूज करें, ठीक है। तो जो बिजनेस फिट है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने सब कुछ किया बट बिजनेस फिट नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो आई थिंक एंड फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू एवरीवन।